Chalo, can we start? We'll continue with our revisions. This is revision lecture number 3, I guess. Revision number 1, we completed what is accounting. We also completed all the definitions. Who are dators? The people from whom amount is receivable. Money receivable nahi. Money receivable becomes an asset. A person from whom the amount is receivable becomes debtor. Who's a creditor? Wonderful. Debtor is an asset or a liability? Creditor is a liability. You know what are fixed assets? You know what is expenses? You know what is incomes? सारे डेफिनेशंस क्लियर थे. डेफिनेशंस के बाद हम लोग गए थे अकाउंटिंग करने के लिए रूल्स अंडरस्टैंड कर लिए हम लोग ने. सो वी अग्रीड विद ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स. ट्रेडिशनल रूल्स आर रियल, पर्सनल, नॉमिनल. मॉडर्न रूल्स आर असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल. ये भी हो गया. डिड वी डू जर्नल? Journal is known as book of prime entry or secondary entry. Entries in journal are recorded in dash order. And then we went to posting. We went to ledger. Transfer of entry from journal to ledger is known as posting. Perfect. Ledger will contain all accounts. Ledger is known as dash book. Principal book. Are we clear with that one? फिर posting समझा दिया था. Balancing नाम का word समझाया था. Which are the accounts which are balanced? Real and personal accounts are balanced. Nominal accounts are not balanced. Nominal accounts are closed and transferred to P&L account. Trading and P&L. ये सब चीज़ हो चुका था. Then last revision number 2 पे हमने subsidiary books नाम का chapter भी कर लिया था. So subsidiary books. How many subsidiary books do we have? Purchase book, purchase return book, sales return book, cash book, bills receivable book, bills payable book, journal proper. सब हो गया था. उसमें हमने परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कवर भी कर लिया था. कैश बुक आज हम लोग कर रहे हैं. एंड देन वी वेंट टू जर्नल प्रॉपर. जो पहले 7 बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं होता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? जर्नल प्रॉपर. एंड देन वी वेंट टू अनदर चैप्टर ऑन दैट डे दैट वाज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी, wages paid for construction of plant and machinery, capital expenditure. Overhauling of a machinery, revenue. Overhauling is nothing but repair. Whitewashing of a building, but whitewashing of a building for the first time, capital expenditure. Done hai, dusted hai. So today we'll take another subsidiary book which is known as cash book. Cash book इतना important क्यों है? Because cash book is a book of prime entry as well as principal book. मतलब ये journal भी है, ledger भी है. Purchase book journal है, but purchase book बनाने के बाद purchase account बनाना पड़ता है. Sales book बनाने के बाद sales account बनाना पड़ता है. Purchase return book बनाने के बाद purchase return account बनाना पड़ता है. Because वो सारे journal थे, ledger में account बनना चाहिए. But cash book is journal as well as लेजर. इसका फॉर्मेटिंग ही लेजर की तरह. ये है जर्नल बट फॉर्मेटिंग लेजर की तरह, पर ये जर्नल भी है और लेजर भी है. एंड एज द नेम इंडिकेट्स कैश बुक विल रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस. सो वी जस्ट कीप ऑन गोइंग. सो कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. यू कैन सी ऑन द फर्स्ट पार्ट. डू यू अग्री विद दैट? देयर इज ओनली वन बुक विच इज अ प्राइमरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक एंड दैट इज कैश बुक. Next one, how many types of cash book do we have? 3 types of cash book. First one, simple cash book. Second, double column cash book. And third one, triple column cash book. ठीक है. Simple cash book और single column cash book will have only one column, that is cash. Double column cash book will have cash and discount. And triple column cash book will have cash, bank and discount. अभी एग्जैक्टली क्लियर. कभी कभी लोग बोलते हैं डबल कॉलम में कैश एंड बैंक भी बन जाता है, बट टेक्निकली स्पीकिंग कैश एंड डिस्काउंट इज डबल कॉलम. Cash, bank and discount is triple column. So cash book records all cash transaction. Cash book is a primary book as well as a principal book. Do you remember that now? Okay. Next one, simple cash book. Simple cash book ना आपको एक normal cash account की तरह दिखाई देगा. किसकी तरह दिखाई देगा? Normal cash account की तरह. Now when I say normal cash account की तरह दिखाई देगा, मतलब account has got how many sides? First one is known as, and second one is known as format, date, particulars, JF, amount,
अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखने की जगह पे हम एक अच्छा सा वर्ड यूज़ कर लेते हैं कैश। कैश इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट? द रूल ऑफ रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश का डेबिट साइड इज नोन एज रिसीट्स एंड कैश का क्रेडिट साइड इज नोन एज पेमेंट्स। कैश आएगा डेबिट में लिखना है, कैश जाएगा क्रेडिट में लिखना है। Is this clear? First one, it's like a normal account with two sides, debit side and credit side. Debit side records the receipts and credit side records the payment. Now, फिर से एक बार, cash is real, personal, nominal. Real accounts are not closed. Real accounts are balanced, and the balance is transferred to the next year. Will you remember that? पक्का? कौन से accounts बंद होते हैं? नॉमिनल अकाउंट बंद होता है। नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज एंड ट्रांसफर टू PNL, बट कैश इज नॉट क्लोज, कैश बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग सिखाया मैंने आप लोगों को, दो साइड का टोटल देखना है, कौन सा ज़्यादा लग रहा है, फिर वो टोटल दोनों साइड लिखना है, फिर बैलेंस लिखना है। डू यू अग्री विद दैट? रूल याद करा दूँ, क्लोजिंग अगर डेबिट पे दिखेगा तो क्लोजिंग डेबिट में दिखेगा तो क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट में दिखेगा तो ओपनिंग डेबिट में दिखेगा तो, एंड ओपनिंग क्रेडिट में दिखेगा तो। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। फर्स्ट वन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंपल कैश बुक। अब सिंपल कैश बुक बनाना है, आई एम हेल्पिंग यू आउट विद दैट, सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल कैश बुक। कैन वी स्टार्ट विद दिस? क्या हुआ? चालू करूँ? कौन से चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? और कैश बुक में क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल कैश बुक बना रहे हैं। अगर हम लोग सिंपल कैश बुक बना रहे हैं, सिंपल कैश बुक बना रहे तो वील हैव डेबिट साइड, और डेबिट साइड लिखने का तरीका होना चाहिए D कैपिटल R स्मॉल, एंड दिस शुड बी कैश बुक, और यू कैन से कैश अकाउंट भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड गाइस दिस इज क्रेडिट साइड। आपका फॉर्मेटिंग होना चाहिए बहुत सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला कॉलम कौन सा होगा? डेट। डेबिट साइड कौन सा होगा? रिसीट्स के बाद, JF के बाद, अमाउंट के बाद, डेट के बाद, पेमेंट्स के बाद, JF के बाद, अमाउंट। अभी क्लियर विद दैट? अब डेट कॉलम थोड़ा छोटा कर देते हैं, JF कॉलम को थोड़ा और भी छोटा कर देते हैं, बिकॉज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम क्लियर है गाइस? चलिए, कैन आई स्टार्ट नाउ? अच्छा, फिर से एक बार, कैश इज रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ऑल रियल अकाउंट्स हैव डैश बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ओपनिंग कौन सी साइड होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्वेश्चन नंबर 1, Jan 1 ईयर 2022 बोल रहे हो, तो यहाँ पे 22 लिखने का, डेट कॉलम में 2022 लिख देने का, और अब हम लोग बोल रहे हैं Jan 1, तो यू कैन राइट Jan 1 और यू कैन राइट 1/1, एंड व्हेन यू राइट 1/1 अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पहले डेट आता है फिर मंथ आता है। डू यू अग्री विद दैट? कैश इन हैंड, डेबिट बैलेंस आएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और लेजर फोलियो पे डैश, अमाउंट इज 12,000। डू यू अग्री विद दिस? चलो नेक्स्ट वन, रिसीव्ड फ्रॉम राम, इज इट रिसीट्स और पेमेंट्स? रिसीट्स कौन सी साइड पे? सो डेबिट साइड पे डेट आ रहा है हमारा कौन सा? 5th of Jan, एंड हम लोग रिसीव कर रहे हैं किससे? टू राम से रिसीव कर रहे हैं, और कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं? 3,000। जर्नल फोलियो पे डैश और यहाँ पे 3,000। नेक्स्ट वन, पेड रेंट, रिसीट्स और पेमेंट्स? पेमेंट्स। पेड रेंट ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, डेट है हमारा 7th of Jan, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? बाय रेंट। जकास है? ओके, और जर्नल फोलियो पे डैश, एंड अमाउंट कॉलम पे हम लोग लिखेंगे 300। कोई डाउट? नेक्स्ट वन, सोल गुड्स फॉर कैश, रिसीट्स और पेमेंट्स? पक्का ना? डेट कौन सा आ जाएगा? 8th of Jan। 8th of Jan पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू सेल्स, एंड सेल्स कितने का हुआ था? अमाउंट याद है? 3,000।
एनीवन क्लियर? नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश हो गया, पेड टू श्याम 7,000, रिसीट्स और पेमेंट्स, कौन सा डेट आ रहा है? 10th of Jan। मैं डेट पूछ रहा हूँ तो 7,000 बोल रहे हो आप, कहाँ पहुँच रहे हो मैडम? खाना तो खा के आए ना आप अभी। श्याम और अमाउंट कितना आएगा? 10,000। नेक्स्ट वन गाइस, परचेज फर्नीचर 7,000 है, ध्यान अमाउंट पे ही है अभी तक बच्ची का। नेक्स्ट वन, परचेज फर्नीचर, रिसीट्स और पेमेंट्स, पेमेंट्स, एंड मैं अमाउंट ले लेता हूँ 2,000 और डेट है हमारी 27th of Jan और हम लोग क्या बाय कर रहे हैं? बाय फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट है आपका 2,000। क्लियर गाइस? नेक्स्ट वन, पेड सैलरीज, रिसीट्स और पेमेंट्स, डेट है 31st of Jan। सो 31st of Jan यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे कितना गाइस? 1,000। नेक्स्ट वन, सैलरी ड्यू नॉट पेड, सैलरी ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है बट अभी तक हमने पे नहीं किया। मैडम फोन रख दीजिए, एग्जाम आ रही है अभी। कैन वी कंटिन्यू? हाँ बोलो कितना? रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है पर पे, और अगर पे नहीं किया तो ये कैश बुक में, अच्छा ये परचेज बुक में आएगा, ये सेल्स बुक में आएगा, परचेज रिटर्न में आएगा, सेल्स रिटर्न में आएगा, बिल्स रिसीवेबल में आएगा, बिल्स पेएबल में आएगा, कैश बुक में आएगा, तो किधर आएगा? फिलहाल हमें कैश बुक बना रहे वहाँ पे नहीं आएगा। सो दिस इज कैश अकाउंट डन। डू यू अग्री विद दैट? नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग। नेक्स्ट स्टेप इज, अब बैलेंसिंग करना है तो हमें देखना है कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा होगा। बोलो कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है? बिना देखे बोलना है, बिना देखे आंख बंद करके बोलना है कि डेबिट का टोटल ज्यादा होगा, बिकॉज रियल अकाउंट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंसेस। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, अरे है ही नहीं तो देंगे कहां से कैश? अभी एग्जैक्टली क्लियर अभी तक। कल ही एक फ्रेंड आया था, संडे था, भाई को जाना था होटल, बोलते राहुल 2,000 देना, मतलब नहीं है, 1,000 दे, नहीं है 500 दे, नहीं 100 तो दे, अरे है ही नहीं तो कहां से दूं? है ही नहीं तो। सो कैश अकाउंट कैन नेवर हैव नेगेटिव बैलेंस। कौन सी साइड का टोटल ऑलवेज ज्यादा होगा? 12 + 3, चलो कैलसी उठाओ। 18,000 आ गया, डेबिट साइड पे लिख दिया, 18,000 लिख दिया क्रेडिट साइड पे। डू यू अग्री विद दिस? दोनों साइड पे सेम टोटल लिखना है। चलो अब क्रेडिट का टोटल कितना है? 10,300। 18,000 माइनस 10,300 करना है। बोलो आंसर कितना आएगा? कैलसी अलाउड है भाई, 10 बार बोला है कैलसी लेके बैठो। बोलो 7,700। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इज इट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? एंड दिस इज 7,700। जकास है। इसका ऑपोजिट पोस्टिंग ऑलवेज उस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे दिखेगा। नाउ फॉर एग्जांपल कैश बुक का डेबिट साइड दिख रहा हूं, फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस, क्लियर है? व्हाट इज सेकंड? टू व्हाट? राम अकाउंट में कौन सी साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है, यहाँ पे कैश में लिखा है टू राम, तो राम में क्या लिखने का? बाय कैश। सेल्स में क्या लिखने का? बाय कैश। रेंट में क्या लिखने का? टू कैश। श्याम में क्या लिखने का? टू कैश। फर्नीचर में क्या लिखने का? टू कैश। सैलरीज में क्या लिखने का? ये हो गया हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक बैलेंसिंग। समझ गया? कोई डाउट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कौन सा कॉलम कैश बुक आएगा? डबल कॉलम में कौन सा दो कॉलम होना चाहिए? कैश एंड डिस्काउंट होना चाहिए। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि कैश एंड बैंक होता है, बट कैश एंड बैंक नहीं, एक्चुअली इट इज कैश एंड। अच्छा, अब तुमको याद हो जर्नल के लैंग्वेज से सिखाया था, जर्नल चैप्टर में सिखाया था कि डिस्काउंट इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ कैश। कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट बी क्रेडिट। कैसा एंट्री बन सकता है कि कैश डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट ऐसा बन सकता है? नहीं। ठीक है, कोई डाउट? आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टू मच ऑफ टाइम। फर्स्ट वन, कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव, बैंक अकाउंट कैन हैव डेबिट बैलेंस और बैंक इज रियल, पर्सनल, नॉमिनल? पर्सनल कैन हैव डेबिट और कैन हैव। नाउ डिस्काउंट ऑन टू साइड्स ना, दो अलग अलग डिस्काउंट है, तो इसको बैलेंस नहीं करना है। अलग अलग डिस्काउंट का मतलब डेबिट में जो डिस्काउंट है ना उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट में जो डिस्काउंट है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड।
इसको खाली टोटल कर देना है और टोटल करके साल के एंड में इसको कहां ट्रांसफर कर देना है, पीएनएल पे। पर इसका बैलेंसिंग नहीं करने का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कैश कॉलम ना हो के मैं बोलूं कि ये डिस्काउंट कॉलम है, तो अपने को ऐसा नहीं देखने का टोटल ज्यादा है उसमें से क्रेडिट माइनस करेंगे ऐसा। तो यहाँ पे 18,000 का टोटल लिखने का, यहाँ पे 10,300, यहाँ पे 10,300 का टोटल लिखने का। डिस्काउंट कॉलम इज ओनली टोटल and at the end of the year they are transferred to P&L because they are which accounts, nominal, and debit of discount is discount allowed and credit of discount is discount classic. Discount is a nominal account, it should not be balanced, it should be closed and transferred to profit and loss account. Discount allowed is an expense and discount received is an चका से एकदम। मैं टाइम पास नहीं करूंगा, पूरा क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करूंगा, सॉल्व लिखते नहीं करेंगे अभी। फर्स्ट वन, Ganesh commenced business on 1st April with 2000 as capital. He had following transactions in the month of April 2022. सबसे पहले 1st April को क्या हो रहा है? नहीं, मेरे को तो परचेज नहीं दिख रहा है, ऊपर पढ़ ही नहीं रहे हो। 2000 एज कैपिटल लेके आ रहा है वो, यहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा है बिकॉज बिजनेस चालू कर रहा है। सो कहाँ पे आएगा ये कैपिटल, रिसीट्स और पेमेंट्स? पेमेंट्स, पैसा जा रहा है भाई। सबसे पहला जर्नल एंट्री लाइफ का जो सीखे हो वो एक ही जर्नल एंट्री है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पढ़ो पहले फर्स्ट लाइन फिर आगे जाओ ना। गणेश कमेंस बिजनेस ऑन 1st April विद 2000 एस जर्नल एंट्री बोलो। कैश के रिसीट साइड पे या पेमेंट साइड पे? रिसीट साइड पे कैश आ रहा है बिजनेस में, कितना कैश आ रहा है? 2000। He had following transactions in the month of April 2000. Now we are only talking about receipts and payments. Can we start with that? No chorus answers. First one, purchase furniture. Payments. Purchase goods. एक ही जन सर, भाई जाग रहे हो सो रहे हो? Payments. चलिए मैडम नेक्स्ट, sold goods for cash. Receipts. मैम paid cash to Ram Mohan. He allowed a discount of 10. पेमेंट साइड पे पर डिस्काउंट कॉलम में। अब वी से पेड कैश टू राम मोहन, तो कैश कॉलम में कितना लिखेंगे और डिस्काउंट कॉलम में कितना लिखेंगे? नेक्स्ट वन मैडम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 एंड अलाउड डिस्काउंट 20। रिसीट साइड पे कैश कॉलम में कितना? 600। तुम लोग थोड़ा आ जाओ ना, यहां वहां पे शिफ्ट हो जाओ, दोनों जन इधर आओ, चलो फटाफट, देखते ही नहीं हो। ओ मैडम आर्ग्यूमेंट कम कीजिए, जब सर बोलते तो आ जाने का फटाफट। हाँ चलो, अब दिख रहा है आपको मैडम? वेरी गुड। कैल्सी भी निकाल के रखो। किधर गया वो? तो अभी निकाल दो ना, कैल्सी दे उसको। स्टार्ट करें? आपका कैल्सी कहाँ है? निकालो निकालो मैडम, क्या कर रहे हो ये? अब बच्चे नहीं हो तुम लोग। आई स्वेयर यार, तेरा कैल्सी मतलब क्या एक एक जन को बोलूं कि कैल्सी किधर है? गाइस अगर तुम लोग को नहीं चाहिए रिवीजन तो मैं बंद कर देता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। You want revision, you don't want revision? ऐसे पिक्चर देखना तो मैं कोई अलाउड नहीं है क्या? इसको मैं इधर बोल रहा हूं तू सुन रहा है खाली? Can I start with this now? चलिए नेक्स्ट वन, आई एम आस्किंग यू, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी एंड अलाउड डिस्काउंट। मैम कैश कॉलम में कितना बेटा? एंड डिस्काउंट कॉलम इतना भी छोटा नहीं है यार, 20। चलो आगे नेक्स्ट वन मैम, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15 पेमेंट्स। नेक्स्ट वन मैम, कैश परचेज 150 पेमेंट। आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस ही पूछा मैंने उसको। चलो नेक्स्ट, yes, paid wages payment. Next one, paid to Ali and Sons 400 and they allowed a discount of 8.
भाई एकदम पहला वर्ड है, मैं खाली रिसीट्स और पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ, कहाँ हो सब लोग? इट्स पेमेंट और रिसीट्स? पेमेंट्स, कौन सी साइड लिखना है? पेमेंट्स। अभी ये भी तुम अगर वहां पे करके आओगे एग्जामिनेशन में तो भगवान बचाए तुम लोग को, फिर मैं नहीं हूं वहां पे बचाने के लिए। मेक 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आर वी डन विद दैट? कैन आई गो अहेड नाउ? नेक्स्ट वन, अभी कौन सा कॉलम कैश बुक आएगा? अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन से 3 कॉलम बनेंगे हमारे? अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। पहला कॉलम कैश, सेकंड कॉलम बैंक, थर्ड कॉलम डिस्काउंट। उल्टा फुल्टा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 कॉलम डेबिट में आना चाहिए, 3 कॉलम क्रेडिट में आना चाहिए। कैन वी स्टार्ट विद दैट? चलो, फर्स्ट वन, कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव, बैंक कैन हैव अ डेबिट बैलेंस और अ, and discount column is a nominal account, it should not be balanced, it should be closed and transferred to profit and loss account. Discount allowed is an expense and discount received is an, अब जब 3 कॉलम आ जाए ना तो बहुत मजा आती है। नाउ बिकॉज वील हैव कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, तो गाइज वी हैव समथिंग विच इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्रीज। कौन सा एंट्रीज? कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस विल कम इन कैश बुक ऑन बोथ द साइड्स। So there are only 2 contra entries. Contra entry number 1, cash deposited into the bank. If I am depositing cash into bank, journal entry क्या आएगा? Cash is deposited into the bank. बेटा bank to cash. So बैंक के कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट। कैश के कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट। और लेजर फोलियो में सी लिखने का, सी का मतलब कॉन्ट्रा, बिकॉज इसको कोई और लेजर नहीं, दोनों इधर ही है। और दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री आ सकता है कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से जाके कैश विदड्रॉ करा लिया। जर्नल एंट्री कैश टू बैंक, पैसा आ रहा है। सो कैश के कौन सी साइड पे? डेबिट। और बैंक के कौन सी साइड पे? क्रेडिट। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दैट? अच्छा, सेकेंड थिंग, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। किसी पार्टी ने हमें चेक दिया, क्या दिया? अब उसने चेक दिया और फॉर एग्जाम्पल आज फ्राइडे है, अब फ्राइडे इवनिंग हो गई, बैंक बंद हो चुका है, सैटरडे बैंक बंद, संडे बैंक बंद, अब बैंक कब खुलने वाला है? तो वो चेक डिपॉजिट कब होगा? तो फ्राइडे जब चेक मिलेगा तो आप बैंक कॉलम में नहीं लिखेंगे, आप कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम में। बिकॉज फ्राइडे को जब चेक मिलेगा तो हम उसे कैश बॉक्स में रख देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, राम गेव अ चेक टू अस, तो एंट्री बैंक टू राम नहीं आएगा, एंट्री आएगा कैश टू राम। कौन से दिन पे? जिस दिन चेक मिलेगा, पर डिपॉजिट। और फिर मंडे को जब हम वो चेक डिपॉजिट करेंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक टू कैश, राम नहीं। वरना तो ऐसे लगेगा राम से 2 बार पैसा आ रहा है। बेटा राम से पैसा आ चुका है कि राम से 2 बार पैसा आ रहा है? तो राम से जब पैसा आया, चेक आया, तो हमने कौन सा एंट्री पास किया? कैश टू राम लिखा। अब वो कैश कहां डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या पास करोगे? बैंक टू कैश, राम नहीं। इज दिस क्लियर? पक्का? कोई डाउट्स? मेरे को तुम लोग पे थोड़ा भरोसा कम है ना, तो अभी तुम लोग अपना अकाउंट्स का बुक खोलो और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 साथ में सॉल्व करने वाले। फटाफट करने का है, टाइम पास नहीं करने का है जरा भी। डेबिट कैश बुक एंड क्रेडिट एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने का है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 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 डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट। अब मैं जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बना रहा हूं बिकॉज मेरे पास कॉलम स्पेस कम है। रिसीट्स, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, डेट, पेमेंट्स, कैश, बैंक, डिस्काउंट। चलो, स्केल पेंसिल बेटा छोड़ दे, खाली पेज को 2 में डिवाइड कर दे और फटाफट अमाउंट लिख। वी आर ऑल डूइंग एनी रिविजन्स, दैट्स इट, एंड वी आर गोइंग टू मूव वेरी क्विक ऑन दिस। चलो, अगर तुम लोग सब रेडी हो तो कैन आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन?
स्टार्ट करूं? चलो फर्स्ट वन, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक ऑफ RM। ईयर है 2022, तो डेट कॉलम में सबसे पहले डेबिट साइड पे जाके लिखो 2022 और क्रेडिट साइड पे डेट कॉलम में लिखो 2022। लिख दिया? चलिए एक एक जन आंसर करेगा एंट्रीज के साथ और पोस्टिंग्स के साथ। हाँ सर, आपसे स्टार्ट करेंगे। RM स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। रिसीट साइड, सो लैंग्वेज रिसीट्स बोलोगे तो मुझे मज़ा आएगी, ठीक है। सो रिसीट साइड पे क्या लिखेंगे? टू व्हाट? कैपिटल। और कैश कॉलम में कितना लिखेंगे? 20,000। बैंक कॉलम पे डैश, डिस्काउंट कॉलम पे डैश। डू यू अग्री विद दिस? चलिए डन। मैडम सेकेंड, 3rd Jan डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 19,000। वंडरफुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रिसीट साइड पे क्या लिखूं मैम? अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना बेटा, तो रफ में यहाँ पे नीचे एंट्री लिख दे। एंट्री लिखा है तूने बैंक टू कैश। अब पोस्टिंग समझा इसका? वंडरफुल। अभी यहाँ पे लिखिए 3rd Jan, दिस इज सो गुड। यहाँ पे लिखने का टू कैश। कौन से कॉलम में लिखोगे गाइस? बैंक कॉलम में लिखोगे 19,000। तुमने लेजर फोलियो का कॉलम बनाया तो वहां पे लिखो C। कॉन्ट्रा नहीं बनाया, एग्जाम में बनाना होगा। करेक्ट है? अच्छा मैडम, एक ही पोस्टिंग हुआ, दूसरा पोस्टिंग? कैश के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट लिखेंगे 3rd Jan और वहां पे लिखेंगे बाय व्हाट? बाय बैंक। और बाय बैंक में क्या लिखूंगा? कैश में 19,000। एकदम सही जा रहे हो मैडम, वेरी इंप्रेस्ड। अभी क्लियर विद दैट? कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे पूछते रहो। इज दिस क्लियर? कॉन्ट्रा एंट्री समझा? एंट्री क्या पास किया था? बैंक टू कैश। बैंक के डेबिट साइड में जाके लिखा टू कैश, पर अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है और बैंक के क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय कैश और अमाउंट, सॉरी बाय बैंक और अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना है? कैश। समझा? नेक्स्ट वन, he received a check from Kirti and Company on account 600 rupees। yes मैम, 4th Jan की बात कर रहा हूं। बहुत स्लो। yes मैम, बहुत स्लो। yes सर। कुछ और ही भलता ही कर दिया। ही रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी। तेरा तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स ही हिला हुआ है। चेक मिल रहा है, चेक जा रहा है। तो चेक मिलेगा तो क्या एंट्री पास करोगे? तो उल्टा क्यों बोल रहे हो आज? रिसीट्स का पेमेंट, पेमेंट का रिसीट्स। अभी क्लियर विद दैट वन? पर बहुत क्लियरली समझाया। ये चेक डिपॉजिट किया क्या बैंक में? नहीं, इन्होंने बोला एंड डिपॉजिटेड, नहीं बोला। एंड डिपॉजिटेड बोला तो कौन से कॉलम में लिखते? बैंक। पर देखो 4 के बाद 7 तारीख का ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है। मतलब आज तो हम लोग को सिर्फ चेक, तो कौन से कॉलम में लिखोगे? एंट्री क्या पास करोगे? कैश टू कीर्ति एंड कंपनी। डेट लिखिए 4th Jan, डेबिट साइड पे लिखिए टू कीर्ति एंड कंपनी और अमाउंट कैश कॉलम में लिखोगे 600 रुपए का चेक है। इज दिस क्लियर? और आज कैश कॉलम में आएगा। अब आराम से याद रखो, अब ये चेक कहां पड़ा हुआ है? अब लोग मुझे पूछते सर ऐसे क्यों लिखते हो, कैश कॉलम में क्यों लिखते हो? बिकॉज जिस दिन चेक मिला ना, वो कैश बॉक्स में डाल के रखा है। अभी 7 तारीख को ये चेक कहां जा रहा है? एंट्री बोलो। बैंक टू कैश। तो अभी हम लोग जाएंगे 7 तारीख को और बैंक में क्या लिखेंगे? टू कैश। और अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? बैंक कॉलम में कितना अमाउंट आएगा? 600। बट इसका कॉन्ट्रा करना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे 7th Jan और वहां पे क्या लिखोगे? बाय बैंक और अमाउंट कैश कॉलम में लिखोगे 600। बैंक कॉलम में डैश, डिस्काउंट कॉलम में डैश। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस परफेक्टली। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? चलिए नेक्स्ट वन, 10th, he pays to Ratan and Company by check and is discount allowed 20 rupees, amount is 330। चलिए मैम,
बहुत सिंपल है ये तो। एकदम गलत कर लेते हो, क्यों ऐसे जा रहे हैं तुम लोग आज? जब मैं रिवीजन कराने आता हूँ तो ऐसे ही काम करते हो। मैम रिसीट है या पेमेंट से बेटा? पेमेंट्स में बैंक अकाउंट डेबिट कैसा आ जाएगा? कोई प्रेशर में आ जाते हो क्या सर रिवीजन करा रहे तो सब उल्टा फुल्टा बोलने का? पेमेंट से तो रिसीट साइड पे या पेमेंट साइड पे? पेमेंट साइड पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होता है, पेमेंट साइड पे बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। और किसको पे कर रहे हो? रतन एंड कंपनी। आपका जर्नल एंट्री आएगा रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डिस्काउंट क्रेडिट होगा मैडम। अगर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कभी दोनों जन अलग अलग बेंच पे बैठे हो आज तक? एक ही बेंच पे बैठे हो ना रोज आके? बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? ये फर्स्ट बेंच पे आके बैठेगी, तू लास्ट बेंच पे आके बैठेगी, होएगा कभी ऐसा? समझ जाओ ना, प्यार से बोला। डिस्काउंट इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ कैश एंड बैंक। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट। डू वी अग्री? कौन सी साइड पे जाएंगे, रिसीट साइड पे या पेमेंट साइड पे? पेमेंट साइड पे जाएंगे। कभी कभी मेरे को फीलिंग आता है रिवीजन नहीं करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। डेट इज 10th of Jan बाय रतन एंड कंपनी। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। कितने का चेक दिया तुम लोगों ने? 330। और डिस्काउंट कितना था? 20। डू यू अग्री विद दिस? चलिए नेक्स्ट वन। 10th of Jan हो गया। 12th of Jan Tripti and company pays into bank account 475. Yes sir. वंडरफुल। तृप्ति एंड कंपनी अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल रही है, अपने को पैसा मिल रहा है। कौन दे रहा है पैसा? रिसीट साइड लिखने का कि पेमेंट साइड लिखने का? चलो रिसीट साइड लिखो 12th of Jan। ये तो रिसीट और पेमेंट बहुत इजी होता है, अगर जर्नल एंट्री नहीं आता है तो भी चलेगा। टू व्हाट? तृप्ति एंड कंपनी। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। 475। जकास है। नेक्स्ट वन 15। He received a check from Marshi and allows him a discount of 35. Total comes to 450. चलो टेल मी गाइस। रिसीट्स। पर रिसीट्स में कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में। क्यों कैश कॉलम में? चेक मिला पर डिपॉजिट नहीं हुआ। तो फिर से रिसीट साइड पे चलो। रिसीट साइड पे चलेंगे, डेट लिखेंगे 15th of Jan। कौन दे रहा है ये चेक भाई अपने को? टू वार्शी एंड कंपनी दे रहा है। और कैश कॉलम में लिखोगे चेक मिल रहा है 450 रुपीज का और डिस्काउंट आ रहा है 35। डू यू अग्री विद दिस? टू गुड, जकास। चलो नेक्स्ट वन 20th। He receives cash 75 and check 100 for cash sales. Tell me. रिसीट साइड पे कौन से कॉलम में? पूरा कैश कॉलम में, पूरा वापस। क्यों? बिकॉज चेक मिला पर। तो रिसीट साइड पे लिखेंगे, डेट आएगा अपना 20th of Jan। डेबिट साइड पे लिखेंगे टू और सेल्स। और कैश में लिखेंगे हम लोग 100 + 75, दैट कम्स टू 175। जकास है। नेक्स्ट वन। He pays into bank including check received on 15th and 20th। अब 15 तारीख का चेक, 20 तारीख का चेक और बहुत सारा कैश, हम लोग ने सारा पैसा कहाँ डाल दिया? मतलब बेसिकली अब ऐसा होगा कि कैश उठा के कहाँ डाला है? बैंक में। व्हाट्स अ जर्नल एंट्री? दैट इज कॉन्ट्रा। सो बैंक टू कैश 25th। कौन से अकाउंट में जाओगे पहले? रिसीट साइड पे जाके क्या लिखोगे? टू कैश। कौन से कॉलम में लिखोगे पर? बैंक के कॉलम में कितना लिखेंगे? 1000। और इसका कॉन्ट्रा क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखोगे गाइस? बाय बैंक। और कौन से कॉलम में लिखोगे? 1000 रुपया। डू यू अग्री विद दिस? चलो नेक्स्ट वन। ही पेज फॉर कैश परचेज 275। बोलो। पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पे डेट आ रहा है 27th of Jan। 27th of Jan बाय परचेज। और परचेज का पेमेंट है 275। कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में, बिकॉज कोई चेक बैक से पेमेंट नहीं हुआ है। ही पे सन्ड्री एक्सपेंसेस 50। पेमेंट साइड पे डेट कौन सा आएगा? 30th of Jan। और यहां पे लिखेंगे बाय व्हाट गाइस? sundry expenses. Do you agree with this one?
30th Jan। डेट पे ज़्यादा ध्यान मत रखो, रिसीट्स पेमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इज इट 50? डन, कहानी खत्म हो गई गाइस। अभी हम लोग को क्या करना है, क्लोजिंग नहीं करनी है, बैलेंसिंग, क्लोजिंग, बहुत कुछ करना है, ठीक है। अब सबसे इजी पहला कौन सा कॉलम है? पहला कैश कॉलम। इज इट रियल, पर्सनल, नॉमिनल? ऑल रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव, तो डेबिट का ही टोटल ज्यादा होगा। फटाफट डेबिट का टोटल करो, चलो। 21,225, यही टोटल लिखने का है। क्रेडिट साइड 21,225। डू यू अग्री विद दैट? और अभी तुम लोग इसका बैलेंस फाइंड करो। 31st Jan बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बोलो कितना आ रहा है? 300, 300 रुपया बैलेंस आ रहा है। चकास है? पता चला कैश अकाउंट को बैलेंस कैसे करने का। कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव डैश बैलेंस। अभी कौन सा कॉलम आएगा? अब बैंक कॉलम का डेबिट साइड भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकता है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन से साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है। तो चलो डेबिट साइड का टोटल करो। 21,075, परफेक्ट है। चलो 21,075 और उसमें से 330 रुपया उड़ा दो। 20,745। अब आराम से इंटेलिजेंट आंसर देना। इज दिस अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। और बैंक में डेबिट बैलेंस का फीलिंग मतलब हमारा बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, मतलब हमें ये पैसा बैंक से लेना है। अच्छा, थर्ड कॉलम कौन सा है गाइस? डिस्काउंट कॉलम इज रियल, पर्सनल और नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस भाई, नॉट बैलेंस। डेबिट का टोटल 35 लिख दो, क्रेडिट का टोटल 20 लिख दो, बस इतना करना है तुमको। और ये 35 का जो टोटल है साल के एंड में और टोटल इसमें ऐड होगा, और टोटल कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में, और ये पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा। डेबिट साइड का डिस्काउंट इज डिस्काउंट, डेबिट साइड का डिस्काउंट इज डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल के डेबिट पे जाएगा। एंड क्रेडिट साइड का डिस्काउंट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, वो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा। समझ गया कैश बुक तुम लोग को? कोई डाउट्स? अच्छा, फिर एक छोटा कैश बुक होता है जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, याद आ रहा है? पेटी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, एक रिसीट साइड बनाते हैं, पेमेंट साइड पे सारे कॉलम्स बनाते हैं, छोटे 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 छोटे। याद आ रहा है तुम लोग को? अच्छा, उसमें एक इम्प्रेस सिस्टम याद है? इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम का मतलब है दैट बैलेंस ऑफ कैश एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड शुड बी सेम। बैलेंस ऑफ कैश एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड शुड बी। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, Jan 1 को कितना पैसा मिला? 1000 रुपीज मिला, तो हमने डेबिट साइड पे बोला 1000 रुपीज मिला। अब खर्चे करने चालू करेंगे। पेड फॉर बस फेयर, एक कॉलम, ट्रैवलिंग। कार्टेज, एक कॉलम, कार्टेज। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एक कॉलम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पेड वेजेस, एक कॉलम, वेजेस। स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ट्रेन फेयर, वही ट्रैवलिंग में डाल देना। रिपेयर्स ऑफ चेयर, रिपेयर का एक कॉलम बना दो। बस फेयर, फिर से ट्रैवलिंग। कार्टेज, फिर से कार्टेज। पोस्टेज मतलब पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ट्रेन फेयर मतलब ट्रैवलिंग। कार्टेज मतलब कार्टेज। स्टेशनरी मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। रिफ्रेशमेंट मतलब रिफ्रेशमेंट में डाल दो या सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दो। अब कितना पैसा मिला था स्टार्टिंग में, और ये सब खर्चे करने के बाद लेट से 600 रुपए का खर्चा हुआ, तो कितना पैसा बचा? नेक्स्ट मंथ ओपनिंग 400 और अपने को ऊपर से लेने का 600 फिर से, तो अपना ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? इसको कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। सो इम्प्रेस सिस्टम का एक छोटा सा MCQ आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम? दैट द ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड शुड बी सेम। समझा? एकदम क्लियर? चलो आगे बढ़ूं मैं, एक एक करके आंसर देने का फटाफट, टाइम वेस्ट हो जाएगा तो बजर बच जाएगा, मैं नेक्स्ट पे चला जाएगा। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। ट्रू, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ, so that means it's a journal as well as a ledger. Answer is true. 2 column cash book consists of 2 column, cash and bank column. False. It should consist cash and discount columns. Next one, third. Discount column of the cash book is never balanced.
ट्रू. नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन 2 columns ऑफ कैश बुक. फॉल्स. कॉन्ट्रा एंट्री 2 column कैश बुक में आ ही नहीं सकता है, 3 column कैश बुक में ही कॉन्ट्रा एंट्री आ सकता है. इफ द बैंक column is showing the opening credit side, it's an overdraft. आंसर इज ट्रू. डेबिट बैलेंस का मतलब समझाया भी रिवीजन करते वक्त, डेबिट बैलेंस का मतलब अपने को बैंक से पैसा, पर अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो अपने को बैंक को पैसा देना है, ओवरड्राफ्ट हो गया. डू यू अग्री विद दैट? चलिए मैम नेक्स्ट. कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. भाई कहां? आंसर बोलिए मैगाइस. फॉल्स. कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली, अरे नाम ही कैश बुक रखा है उसका हम लोग ने. चलिए सर. डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट. फॉल्स. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स. कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है अकाउंट्स में? सिर्फ कैश डिस्काउंट. चलिए मैम एमसीक्यूज, कैन वी स्टार्ट? The total of discount column on the debit side of cash book records cash discount deducted by the customer while paying their accounts. It is posted to the credit side of discount allowed account, debit side of discount allowed account, or credit side of discount received account. इतना सिंपल, बहुत टाइम लगा दिया मैम. टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. डेबिट साइड का डिस्काउंट का टोटल, डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. चलो नेक्स्ट वन. तेरे को तो सेम क्वेश्चन आ गया वापस. वेरी गुड. कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक बट इज ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक? कैश, बैंक और पेटी कैश. petty cash. चलिए नेक्स्ट वन. contra entries are passed only when double column cash book is prepared, triple column cash book is prepared, or single cash book is prepared. Triple column cash book is prepared. The cash book records cash receipts, cash payments, all cash receipts and payments. All cash receipts. ओए वो आंसर दे रही है, तेरे पास आंसर आएगा तभी तेरा मुंह बंद हो जाएगा. नेक्स्ट वन. The balance in petty cash book is an expense, a profit, or an asset? No, the balance in a petty cash book is a asset. बैलेंस मैडम पैसा बचा, खर्चा करने के बाद पैसा बचा. नेक्स्ट वन. इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सेल्स बुक और जर्नल? कैश बुक. कैश सेल्स कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल्स कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल्स कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? सेल्स बुक. कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, कैश बुक. पहले से आंसर बना के नहीं रखने का दिमाग के अंदर सुने बिना. क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, जर्नल प्रॉपर, बिकॉज वो परचेज बुक में नहीं आ सकता. कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. डेबिट साइड इज रिसीट्स, क्रेडिट साइड इज, वी कैन प्रिपेयर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक. कैश इज रियल अकाउंट, इट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस. बैंक इज पर्सनल अकाउंट, इट ऑलवेज शोज डेबिट और credit balance. Discount is nominal account, it should not be balance. Since cash book is principal book, it does not require posting. Business always prepares petty cash book for all petty transactions. I am the best. I will score an exemption. I will send sweets to Rahul sir. चुकास है. चलो अभी ये हो गया कैश बुक. कैश बुक के बाद करने का है नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट वन. फिर से अकाउंटिंग प्रोसेस. मैम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग फटाफट. आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट. बोलो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? आइडेंटिफाई मतलब देखने का, क्या रिकॉर्ड करने का. सेकेंड, कहाँ रिकॉर्ड करोगे सबसे पहली टाइम? जर्नल. हाउ मेनी जर्नल्स डू वी हैव? 8 journals. Subsidiary books are journals. What are 8 journals? Purchase book, purchase return book, sales return book, cash book, bills receivable, bills payable, journal proper. Identify के बाद record. Record के बाद classify कहाँ होता है? Ledger में अलग अलग accounts बनते हैं. Accounts in ledgers are maintained in dash order, analytical, alphabetic wise. So identify हो गया, record हो गया, classify हो गया. अब कहाँ जाएंगे? तो अब सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस निकालेंगे और क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. क्या बनाएंगे? अब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस मिलेंगे. अब सिंपल से थोड़े रूल्स याद रखने, आपको पता ही होना चाहिए.
So all real accounts will show, purchase will show, purchase return will show, sales will show, sales return will show, capital will show, drawings will show, debtors will show, creditors will show, bank will show, debit, bank overdraft will show, credit. And trial balance should tally because total of debit has to be equal to total of, बट अगर ट्रायल बैलेंस टैली भी हो जाए उसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट्स राइट है, अभी भी मिस्टेक्स हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? मिस्टेक्स हो सकते हैं. चकास है. और ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो डेफिनेटली मिस्टेक्स है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस टैली होना ही चाहिए. सो अकाउंटिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. Trial balance will contain balance of all accounts on particular date. It checks arithmetic accuracy. It is basis for preparation of what? Final accounts. But यहाँ पे ये word बहुत important है. Trial balance is a statement which contains balance of all the accounts on a particular date. This statement checks only what? If the trial balance tally, that means there are no errors. True or false? False. Because it will only check arithmetic accuracy. It will not check accounting accuracy. Do you remember that now? चलो, ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट याद है, सीरियल नंबर, सेकंड नेम ऑफ अकाउंट, नेक्स्ट वन LF. जर्नल में किसका नंबर लिखा था? जर्नल में किसका पेज नंबर लिखा था? LF. लेजर में किसका पेज लिखा था? और वापस ट्रायल बैलेंस में किसका पेज नंबर? जहां से आ रहा है वहां से करना पड़ेगा ना. एंड देन विल हैव डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट. डू यू एग्री विद दिस? एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नाउ. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. एक दिन पे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस. जनरली दैट डेट इज एंड ऑफ द ईयर एंड इंडिया में एंड ऑफ द ईयर है 31st of March. Amount of account showing debit balance will be written on the debit side. Amount showing credit side will be written on the credit side. The total of debit column and credit column will be total. Do you agree with that? ट्रायल बैलेंस का पहला मेथड कौन सा? बकवास मेथड है, लोग नहीं यूज करते हैं. अब यहाँ पे अच्छा है कि मेरे पास कैश अकाउंट रेडी है, तो ये कैश अकाउंट पे जा रहा हूँ. अब देखो डेबिट मेथड कैसे होता है. क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ, देख रहे हो तुम लोग? डेबिट साइड का टोटल कितना है? क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? तो हम लोग यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे पता है? कितना बकवास बनेगा ट्रायल बैलेंस, जो कोई बनाता नहीं है एक्चुअली, पर मेथड याद रखने का. सो दिस इज इंसर्ट. इंसर्ट के अंदर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना दिया मैंने. यहाँ पे आता है सीरियल नंबर. सीरियल नंबर के बाद आता है नेम ऑफ अकाउंट, फिर आता है LF ना, फिर आता है डेबिट का अमाउंट, फिर आता है क्रेडिट का अमाउंट. याद रहेगा फॉर्मेट? अब ट्रायल बैलेंस के 3 मेथड है. कितने मेथड है? पहला मेथड है टोटल, दूसरा मेथड है बैलेंस, और तीसरा मेथड है टोटल एंड बैलेंस. बट नॉर्मली ऑलवेज लोग सिर्फ बैलेंस मेथड यूज करते हैं, टोटल मेथड को यूज. अब टोटल मेथड कितना पागल जैसा दिखेगा मालूम है? 1. यहां पे लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट, डेबिट में लिखेंगे 18,000, क्रेडिट में लिखेंगे 10,300. ये टोटल मेथड हुआ. कौन सा मेथड हुआ? नॉर्मली लोग ये यूज, मतलब ये मेथड में क्या करने का है? सारे लेजर अकाउंट्स का डेबिट का टोटल डेबिट में डालने का, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में डालने का. बट नॉर्मली पीपल डोंट यूज दिस. सो टोटल मेथड. In this method, every ledger account is total and the total of both the sides, that is debit side and credit side, are transferred to trial balance method. This method does not support. नहीं यूज करते, पागल लोग है ये, कोई भी कुछ काम करते हैं. अब टोटल मेथड नहीं करना है. द मेथड बैलेंसेस. दूसरा मेथड कौन सा? कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट. अब कैश अकाउंट में टोटल ऑफ डेबिट साइड वाज 18,000, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किया एंड 7,700 बैलेंस आया. डू यू एग्री विद दिस? इज दिस डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? तो भाई यहाँ पे जाने का और यहाँ पे जाके लिखने का 7,700. ये कौन सा मेथड हुआ? बैलेंस मेथड हुआ. समझा? नॉर्मली लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? बैलेंस. और तीसरा तो इससे पागल वाला और एक अच्छा मेथड बोलता है, दोनों को बुरा नहीं लगना चाहिए. तो कौन सा मेथड? तो अभी टोटल एंड बैलेंस मेथड में क्या होएगा पता है तुमको? इंसर्ट
और एक कॉलम इंसर्ट, समझा? यहाँ पे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, याद रहेगा तुमको? अभी पहला 2 कॉलम टोटल, मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट में लिखने का 18,000, फिर इधर लिखने का 10,300, फिर इधर लिखने का 7,700। जकास है। ये कौन सा मेथड बन गया? तुमको कौन सा अच्छा लगा? बैलेंस ही यूज़ करने का। बैलेंस मेथड में याद रखने का कि क्लोजिंग अगर डेबिट साइड पे लिखा है तो वो डेबिट बैलेंस नहीं है, वो क्रेडिट बैलेंस है। क्लोजिंग क्रेडिट में लिखा है तो वो डेबिट बैलेंस है। ओपनिंग डेबिट में लिखा है तो ओपनिंग क्रेडिट में लिखा है तो ऑल रियल अकाउंट्स विल शो, डेटर्स विल शो, creditors will show, expenses will show, incomes will show। जकास बोलो। क्वेश्चन नंबर 4, खाली डेबिट क्रेडिट बोलने का है तुम लोग को। रेडी, गेट सेट गो। चलो आपसे चालू करेंगे। कैपिटल, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, सेल्स आर, सेल्स रिटर्न आर। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल बीएनएल नहीं, मैं तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट खेल रहा हूं। चलिए मैडम, चलिए मैडम, डिस्काउंट अलाउड फटाफट। एक्सपेंसेस डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, कैश इन हैंड एंड एट बैंक डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, इनकम एज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस पेड डेबिट, एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस दिखाएगा। डू यू अग्री विद दैट? चलो नेक्स्ट वन। अब कौन सा अकाउंट दिख रहा है हमें? ट्रायल बैलेंस। अभी क्या है कि ट्रायल बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये मैंने बनाया है, दिख रहा है तुम लोग को, पर मेरे को ना आता नहीं है अकाउंट्स। अभी तुम लोग स्कॉलर बन गया ना, तो अभी तुम लोग को देखने का कि मैंने राइट किया है कि रॉन्ग किया है। कैन यू ट्राई दैट? चलिए मैडम, कैपिटल इज इट राइट और रॉन्ग? बॉट लेट, कैपिटल राइट, ड्राइंग्स राइट, लीज ओल्ड प्रीमाइसेस राइट, सेल्स राइट, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स रॉन्ग। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब क्या होता है? ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स। आना बाकी जाना बाकी नहीं, सिर्फ अकाउंट्स का लैंग्वेज। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब होता है डेटर्स। डेटर्स शुड शो, किधर लिख दिया मैंने? क्या राहुल? चलो, परचेज राइट है, परचेज रिटर्न राइट है, लोन फ्रॉम बैंक सॉरी राहुल, सॉरी राहुल, उधर बोलो, उधर तो चलो सर, लोन फ्रॉम बैंक राइट है, वेरी गुड सर। नेक्स्ट वन, ट्रेड पेएबल मैडम, ट्रेड पेएबल मैडम रॉन्ग है। ट्रेड पेएबल कौन सा बैलेंस दिखाना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस। और ट्रेड पेएबल का मतलब क्या? क्रेडिटर। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या? अलग अलग नाम है इसके भाई। ट्रेड पेएबल शुड शो क्रेडिट बैलेंस। ट्रेड एक्सपेंसेस राइट है, कैश एट बैंक राइट है, बिल्स पेएबल फिर से रॉन्ग, सॉरी राहुल। सैलरी एंड वेजेस राइट है। नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री रॉन्ग है यार, सॉरी राहुल। रेंट एंड रेट्स राइट है, सेल्स रिटर्न फिर से सेल्स रिटर्न रॉन्ग। कितना मिस्टेक करता है राहुल तू यार, मजा नहीं आया। समझ गया? स्मार्ट बन गए तुम लोग? कौन सा चैप्टर था? ट्रू और फॉल्स खेले? चलिए सर, फिर से एक बार स्टार्ट। प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो कौन सा फेज है ये? फोर्थ। फर्स्ट फेज कौन सा है? पर उसमें कुछ करना नहीं होता है, तो गिना नहीं जाता है वो। ये लोग फंसाते अपने को ऐसे। एंड ही इज वेरी करेक्ट बिकॉज उसने सोचा, बरोबर सोचा। सर आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज। सर फोर्थ स्टेप हुआ, बट आइडेंटिफाई में तो कुछ करते ही नहीं है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इज दिस क्लियर? स्कूल में थे ना, टेक्स्ट बुक लेते थे, पूरा टेक्स्ट बुक पे ऐसा अंडरलाइन, मार्किंग, जानबूझ के हाइलाइटर, वही
जानबूझ के। किसी दिन मम्मी ने बुक खोल लिया तो ऐसा देख के लग, और एक बच्चा क्या पढ़ रहा है यार। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। सो ट्रायल बैलेंस इज एग्जैक्टली थर्ड फेज, बिकॉज फर्स्ट फेज इज जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। आंसर इज ट्रू। ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रू, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनने वाला है? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। फॉल्स। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो डांस नहीं करने का। फाइनल अकाउंट्स टैली हो जाए फिर भी डांस नहीं करने का, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स भी बैलेंस शीट टैली हो गया उसका मतलब नहीं कि हम राइट है। ठीक है, तेरे को एक कहानी सुनाता है बहुत अच्छा। मेरा कजिन था, उसको डेबिट क्रेडिट समझाया, बाद में बोलता है फाइनल अकाउंट्स बनाना है। सर राहुल मेरा टैली कभी नहीं होता है। मैंने देख बेटा, जो डेबिट में लिखा है ना वो सब डेबिट में लिखने का, जो क्रेडिट में लिखा है वो सब क्रेडिट में लिखने का। तो मेरे को बोलता है भाई उसके बाद वो एडजस्टमेंट्स होते हैं। मेरा पागल, उसको एक में डेबिट में लिख देने का और एक को क्रेडिट में लिख देने का। समझ गया कि नहीं समझा? और उसको बाद में बोला बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट वो उल्टा है, लायबिलिटी क्रेडिट है और असेट्स डेबिट है। वो फाइनल अकाउंट्स बना के है, मालूम है, झकास वाला। लैंड एंड बिल्डिंग किधर आता है? वो लिख के है ट्रेडिंग डेबिट पे, ट्रेडिंग डेबिट पे। सेल्स किधर आता है? किधर किधर? ट्रेडिंग के क्रेडिट पे। वो किधर लिख के आया होगा? लायबिलिटी। सीरियसली बोल रहा हूं, पर फिर भी बैलेंस शीट बाहर आके बोलता है भाई टैली हो गया, बिकॉज भाई ने एक अच्छा रूल फॉलो किया। क्या? डेबिट का अमाउंट सब डेबिट में छापा और क्रेडिट का अमाउंट सब क्रेडिट में छापा। बैलेंस शीट टैलीज। इफ ट्रायल बैलेंस टैली इट इज नॉट एक्यूरेटली प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। एरर्स की फिलहाल हम लोग बात नहीं कर रहे, सो आई एम नॉट टेकिंग फोर्थ वन। द ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल, मैं नहीं ले रहा हूं। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन इफ द ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट ओपन इन ट्रायल बैलेंस इज अ परमानेंट अकाउंट। ऐसा सुना है? सस्पेंस अकाउंट नाम सुना हुआ है? अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करे तो कौन सा अकाउंट बनाने का? इज दिस परमानेंट? नो भाई, इसको तो अपने को रखने का नहीं घर पे, इसको भगाने का। सो फॉल्स। Are we clear? Next one, ma'am. The balance of purchase return account has a credit balance. True. Absolutely fantastic. Multiple choice questions, madam. Trial balance will not balance. ये छोड़ दो. Preparation of trial balance. हाँ. After preparation of ledger, the next step is preparation of what? Trial balance. कितना silly question पूछते हैं. ये सब छोड़ दो. और बोलो. I am the best. I will score and I will send sweets too. हाँ, राहुल सर कौन है मालूम है ना? बाद में मालूम पड़ा वो ही नहीं। सर इतनी टाइम बुलाया हमको मालूम नहीं था राहुल सर कौन है। इज दिस क्लियर? कौन सा चैप्टर हो गया? इसके पहले कौन सा चैप्टर हो गया? कैश बुक हो गया और ट्रायल बैलेंस भी हो गया। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? चालू करें? ऑफर ये था, बहुत अच्छा वाला ऑफर था कि एक काम करूं, तेरा एग्जाम भी मैं ही दे के आता हूं, है ना? अपने को टेंशन ही नहीं लेने का लाइफ में। एकदम पूरा मैं पढ़ लेता हूँ, एग्जाम मैं दे के आता हूँ, आईडी तेरा होगा, नाम भी तेरा होगा। चले आगे, बिकॉज बिफोर मम्मी स्टार्ट्स गोइंग ऑन सम, मम्मी नहीं, क्या बोला था? दादी, दादी, ओके दादी। व्हाट्स द नेक्स्ट चैप्टर? गाइस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर आना है ना तो जर्नल आना चाहिए। इनफैक्ट अभी से आगे जितना भी अकाउंट्स हम करेंगे, एक्सेप्ट फ्यू टॉपिक्स जो थोड़े सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशंस है वगैरह वगैरह, सारे चैप्टर्स के अंदर जर्नल एंट्री का सबसे बड़ा हाथ होगा। ठीक है? और जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स। वन इज डेबिट, वन इज रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. Nominal accounts is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Rectification of errors. Errors. There are two types of errors. Major two types of errors. One are known as clerical errors and second one is known as errors of principle. Clerical errors का मतलब है कोई भी ये error कर सकता है,
कोई भी, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट यही सेशन में मुझे याद आ रहा है, मैं अभी कैश बुक बना रहा था, अमाउंट 7,000 था, मैंने लिख दिया 10,000, तो ये कौन सा एरर हुआ? क्लेरिकल एरर। और सेकेंड एरर हो सकता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल तब होता है जब हमारे अकाउंट्स के फंडामेंटल्स क्लियर ना हो, अकाउंट्स के फंडामेंटल्स क्लियर ना हो तो फिर हम मिस्टेक कर लेंगे। इसको कहते हैं कौन सा एरर? लास्ट लेक्चर में इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एक चैप्टर सिखाया, रिवाइज कराया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डू यू रिमेंबर दैट? इंस्टॉलेशन चार्जेस आर कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस? एंट्री क्या आना चाहिए? मशीनरी का इंस्टॉलेशन करा रहे हो, 5,000 रुपये भर रहे हो, व्हाट शुड बी जर्नल एंट्री? पर उस बंदे को पता नहीं चला, उस बंदे का लॉजिक्स वीक था, तो उसने क्या लिखा मालूम है वहां पे? इंस्टॉलेशन टू कैश। ये कौन सा एरर हुआ? प्रिंसिपल। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर एरर्स यू हैव? पहला एंड सेकेंड क्लेरिकल एरर्स के अंदर 4 एरर्स है हमारे पास। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर, ड्यूप्लीकेटिंग एरर। कितने एरर्स है? पहला कौन सा, सेकेंड कौन सा, थर्ड कौन सा एंड फोर्थ कौन सा? ओमिशन का मतलब है कुछ लिखना भूल जाओ, तो इसे क्या कहते हैं? ओमिशन। अब यहां पे हम लोग आ रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एरर्स। विल यू रिमेंबर दैट नाउ? सो दिस इज एरर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ओमिशन एरर्स की हम लोग बात कर रहे हैं एंड लेट्स से रेंट पेड, जर्नल एंट्री क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? अब मैंने ये एंट्री लिख लिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख लिया एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। ओमिशन, 2 टाइप के ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? कंप्लीट ओमिशन, ये एंट्री लिखना ही भूल गए, मतलब कि ये एंट्री लिखा ही नहीं, एंट्री लिखना भूल गए। कौन सा एरर है? ओमिशन। एंड इज इट अ पार्शियल ओमिशन और अ कंप्लीट ओमिशन? एंट्री लिख लिया, अब एंट्री लिखने के बाद क्या करना है? जर्नल में पास किया, एंट्री जर्नल में तो लिखते, और किधर लिखते? घर पे। पोस्टिंग, पोस्टिंग कैसे करोगे? रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू कैश, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके एंट्री लिखा पर पूरा पोस्टिंग करना भूल गए। रेंट में टू कैश भी नहीं लिखा, कैश में बाय रेंट भी नहीं लिखा, दिस इज ऑल्सो ओमिशन। कौन सा ओमिशन? इज इट पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन? ये भी कंप्लीट है। अब लोग बोलते सर ये पार्शियल है, क्यों? सर एंट्री तो रिकॉर्ड किया ना, पोस्टिंग करना भूल गए। नहीं, यहां पे कंप्लीट ओमिशन का मतलब है हम डेबिट इफेक्ट भी देना भूल गए, क्रेडिट इफेक्ट भी देना भूल गए। तो भले एंट्री पास कर लिया पर लेजर में जाते जाते आपने डेबिट इफेक्ट भी नहीं दिया, क्रेडिट इफेक्ट भी नहीं दिया। समझा कौन सा ओमिशन है? अब आप सोचो, कंप्लीट ओमिशन, पूरा एंट्री लिखना भूल गए या तो पूरा एंट्री पोस्ट करना भूल गए, विल ट्रायल बैलेंस टैली और नॉट टैली? टैली। व्हाई विल इट टैली? बिकॉज डेबिट इफेक्ट भी नहीं गया, क्रेडिट इफेक्ट भी नहीं गया। बिकॉज डेबिट इफेक्ट भी नहीं गया और क्रेडिट इफेक्ट भी नहीं गया। झकास है? एनी डाउट्स ऑन दैट? कौन सा एरर हुआ ये? और कंप्लीट ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस टैली होगा, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी कंप्लीट ओमिशन वाले एरर्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ट्रायल बैलेंस तो बताएगा ही नहीं कि ओमिशन हुआ है। सेकेंड, ओमिशन के अंदर ही पार्शियल ओमिशन। कौन सा ओमिशन? एंट्री लिख दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? पोस्टिंग कैसे करना है? रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाना है, क्या लिखना है? और फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे गए, टू कैश लिख दिया और फिर कैश अकाउंट में जाना भूल गए। अब लोग सोचते हैं ऐसा क्यों होगा? बिकॉज कितने सारे डिस्टर्बेंसेस है। रेंट टू कैश लिखा, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके टू कैश लिखना था, लिख दिया, बीच में फोन आ गया, हमने फोन पिकअप कर लिया, हाँ तू क्या कर रहा है? मैं ये कर रहा हूं, चल बाहर घूमने जाते हैं, और चले गए। कौन सा एरर हुआ?
अब पार्शियल ओमिशन का मतलब है एक इफेक्ट जाना है, मतलब या तो डेबिट इफेक्ट या तो क्रेडिट इफेक्ट हो गया, बट सेकेंड इफेक्ट ट्रायल बैलेंस विल टैली नो। सो पार्शियल ओमिशन के मिस्टेक्स ट्रायल बैलेंस से मिलेंगे। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने का फायदा है कि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन मिलेगा, बट एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और ओमिशन समझा कौन कर सकता है ये मिस्टेक, इसीलिए इसे क्लैरिकल बोला जाता है, समझा। नेक्स्ट वन, सेकेंड कौन सा, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब है रॉन्ग साइड, या तो रॉन्ग अकाउंट या तो रॉन्ग अमाउंट। सर रॉन्ग साइड का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। रॉन्ग साइड जर्नल एंट्री क्या लिखा है, रेंट अकाउंट के कौन सी साइड जाना था, हम क्रेडिट साइड चले गए, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड याद रहेगा। सेकंड कौन सा है, अब रॉन्ग अकाउंट, हाँ रॉन्ग अकाउंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, पेड कैश टू राम, जर्नल एंट्री श्याम टू कैश, राम था, मेरे को श्याम सुनाई दिया। और बहुत टाइम ऐसी चीजें होती है कि थोड़े थोड़े वर्ड राइमिंग होता है। अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद अपन, राम की जगह पे रमेश हो गया। अब ये एग्जैक्टली क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल बंदे को बोला राम अकाउंट में 10,000 डाल दे, अब वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था और अपने इंटरनेट बैंकिंग से कर रहा था। इंटरनेट बैंकिंग में उसने आरएम डाला, क्या डाला, आरएम। अभी आरएम से राम भी आएगा, आरएम से रमेश भी आएगा, रॉन्गली रमेश पे क्लिक हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इज इट क्लियर। अभी 2 दिन पहले किसी का लेजर देख रहा था, बहुत हंस रहा था मैं। एक का नाम राम श्याम था, दूसरे का नाम राधे श्याम था। कितना राइमिंग लगता है, राधे श्याम, राम श्याम, नेम्स कैन बी राइमिंग एंड यू कैन डू अ वेरी सिली एरर इन दैट, दिस इज रॉन्ग अकाउंट एंड थर्ड वर्ड इज रॉन्ग। वो तो अभी मैंने आपके सामने किया था, 7,000 था, कितना लिख दिया। ये कौन से एरर्स हैं, ठीक है, जो मम्मी बोले, जो दादी बोले वो सही है। इज दिस क्लियर। क्या था, 10,000 था पर 7,000 लिख दिया, ठीक है, गलती किया भाई अपन ने। कौन सा एरर है ये, रॉन्ग अमाउंट। सो रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट, इस एरर्स को कौन सा एरर्स कहते हैं। एंड कमीशन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, कमीशन के वजह से ट्रायल बैलेंस विल नॉट, तो वो मिल जाएंगे। थर्ड एरर कौन सा है, मस्त एरर है, मस्त एरर। एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, पर अच्छा झूठ बोला। पहले वाला झूठ भी चुप गया, दूसरे वाला झूठ भी चुप गया, पकड़े नहीं गए। क्या कहते हैं इसको, कॉम्पेंसेटिंग एरर। कौन सा एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट। स्कूल में हुआ था, मम्मी ने कुछ अलग बोला था, बुक लेके आना, मैंने मस्त एक रबर लिया, वो बाइक वाला रबर था, सब बाइक के शेप में, मजा आया मेरे को। फिर बहन ने देख लिया, बोलती किधर से आए, मतलब चुप बैठ, तेरे लिए भी लेके आता हूँ। उसके लिए डॉल वाला रबर लेके आया। कॉम्पेंसेटिंग, एक झूठ दूसरा झूठ, पर पकड़े नहीं गए। अभी वापस ये एंट्री देखो, ऊपर वाला एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पोस्टिंग कैसे करना था, रेंट के डेबिट में लिखना था, कैश के, तो तुम लोग रेंट के क्रेडिट में लिख दिए, पर कैश के डेबिट में लिख दिया। तो कॉम्पेंसेटिंग कैसे हुआ, अकाउंट्स ने क्या बोला अपने को, एक डेबिट होना चाहिए, कर दिया, एक डेबिट एक क्रेडिट कर दिया। जकास, कौन सा एरर हुआ ये, कॉम्पेंसेटिंग। बट पूरा उल्टा हो गया। एक्चुअली रेंट अकाउंट के कौन सी साइड लिखना चाहिए था और कैश अकाउंट के कौन सी साइड लिखना चाहिए था। आपने क्या कर दिया, अभी कैश अकाउंट के
और रेंट अकाउंट के यहाँ पे रेंट पे कर रहे थे, जो पोस्टिंग किया ना उसका मतलब ऐसे लगे कि रेंट आ रहा है। यार इतना खतरनाक एरर हो गया ना कि ये एक्सपेंस है वो इनकम दिखेगा, यहाँ पे कैश जा रहा है वहां पे कैश, पर अकाउंट्स ने तो ये सब नहीं समझा। अकाउंट्स ने बोला एक डेबिट करने का एक क्रेडिट करने का। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? अच्छा नेक्स्ट कौन सा एरर है? डुप्लीकेटिंग एरर का मतलब एक ही एंट्री दो बार लिखने का, या एक ही एंट्री का पोस्टिंग दो बार करने का। अब वापस यही एंट्री, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? पोस्टिंग। रेंट के कौन सी साइड पे? डेबिट। कैश के कौन सी साइड पे? क्रेडिट। पोस्टिंग भी कर दिया। आज का दिन खत्म हो गया, घर पे चला गया, कल वापस आया, अकाउंटेंट ही हूँ, वापस चालू किया और एंट्री दिखा रेंट टू कैश। पोस्टिंग किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? चलो नहीं किया, वापस कर लेते हैं। तो अभी पोस्टिंग कितनी टाइम हो गई? ये हो गई एरर ऑफ डुप्लीकेशन। या तो एंट्री दो बार पास कर लो या तो सेम एंट्री को दो बार पोस्ट कर दो, तो दिस इज डुप्लीकेटिंग एरर। डू यू अग्री विद दिस वन? डुप्लीकेटिंग एरर के वजह से भी ट्रायल बैलेंस विल टैली, कॉम्पेंसेटिंग एरर के वजह से ऑल्सो ट्रायल बैलेंस विल टैली। पक्का? अभी फिर से एक बार ये पूरा चार्ट। एरर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स? पहला, सेकेंड, क्लरिकल एरर्स में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एंड डुप्लीकेटिंग एरर, एंड प्रिंसिपल एरर इज जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अकाउंटिंग नॉलेज। डू यू अग्री विद दैट? अब तुम लोग मेरे को फटाफट आंसर देना। कंप्लीट ओमिशन, ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट टैली? पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, नॉट टैली। कॉम्पेंसेटिंग, टैली। डुप्लीकेटिंग, टैली। प्रिंसिपल, टैली। असेट की जगह पे क्या लिख दिया? नहीं, एक्सपेंस, पर कुछ लिखा ना। कंप्लीट ओमिशन टैली, पार्शियल ओमिशन नॉट टैली, कमीशन में रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, नॉट टैली, कॉम्पेंसेटिंग में टैली, डुप्लीकेटिंग में टैली, एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल में टैली। जकास, एनी डाउट्स? एकदम क्लियर? एंड वाई वी आर थिंकिंग इट विल टैली और इट विल नॉट टैली? टैली नॉट टैली, टैली नॉट टैली क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज तब हमें पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस से कौन से एरर्स मिलेंगे। अगर टैली बोला है तो ट्रायल बैलेंस से ये एरर्स नहीं मिलेंगे, बट नॉट टैली बोला है तो ट्रायल बैलेंस से ये एरर्स मिल जाएंगे। जकास है? कैन आई गो अहेड नाउ? नेक्स्ट, अब खाली एरर्स जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैन आई से एरर्स को रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। एरर्स को 3 लेवल पे रेक्टिफाई कर सकते हो। कितने लेवल पे? इन शॉर्ट, एरर जब मिल जाए कि मिस्टेक हुआ तब उसको रेक्टिफाई कर लो। गॉट दिस? अकाउंट्स रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अकाउंट्स बोलता है जब एरर मिले तब रेक्टिफाई कर लो। इज दिस क्लियर? परफेक्ट है। तो कौन कभी कभी मिल सकता है। पहला एरर मिलेगा, ओए क्लास में पहला एरर मिलेगा कभी? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही मिल जाएगा। अच्छा, वो ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है मतलब सस्पेंस अकाउंट नहीं बना है, मतलब बी से बिफोर ट्रायल बैलेंस, समझा? तो रेक्टिफिकेशन डायरेक्ट होगा। एक अकाउंट को डेबिट कर लो, एक अकाउंट को क्रेडिट कर लो तो भी रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। सेकेंड, ट्रायल बैलेंस बन गया बट अभी तक फाइनल अकाउंट्स, तो रेक्टिफिकेशन करते वक्त सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा, समझा? एंड थर्ड, आफ्टर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बन गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 10 साल के बाद भी एरर मिला तो सर रेक्टिफाई करने? हाँ बेटा, करना पड़ेगा। आर यू क्लियर? वेरी नॉर्मल लाइफ है यार। किसी दिन गलती कर लो और गलती करने के बाद अपने को पता चले अपन ने गलती किया तो सॉरी बोलने का शर्म नहीं आना चाहिए। 10 साल के बाद भी रियलाइज हुआ कि अपन गलती कर रहे थे तो भी सॉरी बोल दो। वो सामने वाला बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, पर मेरे को बोला है बोलने का तो मैं बोल देता है। अपना काम बोलने का। कभी जब भी अपने को फीलिंग आए कि अपन सॉरी है। एरर कितने लेवल पे रेक्टिफाई हो सकते हैं? पहला बिफोर ट्रायल बैलेंस, सेकेंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एंड थर्ड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। विल यू रिमेंबर दिस नाउ? चालू करें अभी? क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन।
अब रेक्टिफाई करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है. क्या है? सिंपल सा प्रोसेस है. सिंपल, बहुत सिंपल. 1 2 3 4. पहले राइट एंट्री पास करने का, फिर रॉन्ग एंट्री पास करने का, फिर रॉन्ग एंट्री का रिवर्स एंट्री पास करने का, फिर राइट और रिवर्स को कंपेयर करके रेक्टिफाइड एंट्री पास करने का. इज दिस क्लियर? बट दैट्स व्हाट आई से गाइस कि यहां तक पहुंचना है ना तुम लोग को, तो तुम्हारा जर्नल एंट्री तो फटांग होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग. बिकॉज रेक्टिफिकेशन कौन करेगा? जो मास्टर हो गया यार उसमें. अगर हमारा जर्नल ही वीक है तो रेक्टिफाई करना तो भूल ही जाओ. इज दिस क्लियर? पक्का? और अब ना फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं लेवल 1 रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं. कौन सा? लेवल 1 का मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस, लेवल 2 का मतलब आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स, एंड लेवल 3 का मतलब आफ्टर फाइनल अकाउंट्स. एंड व्हाई यू शुड बी मास्टर इज बिकॉज नाउ दे विल गिव यू वन ट्रांजैक्शन. अपने को उसका राइट एंट्री जानना है, फिर अपने को यह भी जानना है कि उसके अंदर रॉन्ग क्या हुआ है. मतलब एक ही लाइन के अंदर एक राइट हुआ है और एक रॉन्ग हुआ है. कॉन्सेप्ट समझा? एंड देन यू हैव टू रेक्टिफाई दैट. yesterday मेरी फूई, मतलब माई डैड्स सिस्टर, शी मेक्स लवली स्वीट्स, ऑसम. ठीक है. क्या था? मोहनथाल. सुना है तुम लोग ने? नहीं. मोहनथाल इज लाइक क्या बोल सकते हैं मोहनथाल को? और मैसूर पाक. मैसूर पाक का अलग थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन. अभी एग्जैक्टली क्लियर. एंड शी मेक्स इट एट होम. तो कल मेरी वाइफ ने उनसे रेसिपी मांगा एंड शी प्रिपेयर्ड इट, बट फूई जितना अच्छा नहीं बना. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. अब उसने मुझे बोला राहुल कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है पर कुछ तो गड़बड़ है. यस और नो? अच्छा, बट एम आई अ मास्टर ऑफ मेकिंग मोहनथाल? तो मैं रेक्टिफाई, बिकॉज मुझे ये मालूम पड़ा कुछ गलत है, पर मुझे ये मालूम ही नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है. बट अपने उन्हें खाया है तो अपने को मालूम पड़ता है कि भाई कुछ तो क्लियर. फिर फई को बुलाया, फई आ जाओ जरा घर पे. फई आई, फिर मोहनथाल खिलाया. तूने ना निशा, वो शक्कर गरम करने का होता है, और शक्कर गरम का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया. खाली इतना एरर कि वो शक्कर गरम करके उसको आटे में डालना था, पर वो शक्कर गरम. हु कैन रेक्टिफाई दिस? बिकॉज शी इज द. तुमको ये लेवल पे पहुंचना होगा अगर ये चैप्टर अंडरस्टैंड करना है. अब एक ट्रांजैक्शन दिया होगा, एक ट्रांजैक्शन से तुम्हें राइट क्या है वो भी जानना है, रॉन्ग क्या है वो भी जानना है. कैन वी ट्राई दिस? चलो, फर्स्ट वन. द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय. ये सबसे सिली सिंपल एरर्स होते हैं. यहां पे तुम लोग को इतना ज्यादा दिमाग लगाना, बिकॉज ये एरर ना एंट्री का एरर नहीं है. ये एरर किसका है? टोटलिंग का. किसका एरर? अब टोटलिंग के एरर्स होते हैं ना, उसमें राइट नहीं होता है, रॉन्ग नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है. सीधा क्या करने का अपने को? रेक्टिफाई करना है. बट ये एरर करने के लिए थोड़े बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, जो मैंने करा दिया, आपके रिवीजन में भी स्ट्रांग करा दिए. परचेज विल ऑलवेज हैव, सेल्स विल हैव, परचेज रिटर्न विल हैव, सेल्स रिटर्न विल हैव, कैपिटल विल हैव, ड्रॉइंग्स विल हैव, कैश विल हैव, डेटर्स विल हैव, creditors will have, expenses will have, incomes will have. और इसके बाद मैंने तुम्हें मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी कराया.
According to modern rules of accounts, accounts are classified into 5 categories: asset, liability, income, expense, capital. Asset will have dash balance. फिर से डेबिट कर दो तो, फिर से क्रेडिट करो तो liabilities will have, फिर से क्रेडिट कर दो तो, डेबिट कर दो तो incomes will have, क्रेडिट करो तो, डेबिट करो तो expenses will have, डेबिट करो तो, क्रेडिट करो तो कैपिटल विल हैव, क्रेडिट करो तो, डेबिट करो तो वंडरफुल। चले, किसकी बात कर रहे हैं? हैज बीन अंडर कास्टेड का मतलब टोटल कम हो गया यार। अगर टोटल कम हो गया तो टोटल कैसे बढ़ाओगे? परचेज का टोटल किसको डेबिट करेंगे? तो रेक्टिफिकेशन बढ़ गया, हो गया डेबिट परचेज बाय 100। और ये कौन सा रेक्टिफिकेशन है? लेवल 1 रेक्टिफिकेशन, लेवल 2 रेक्टिफिकेशन और लेवल 3 रेक्टिफिकेशन। लेवल 1 खाली डेबिट क्रेडिट करके हो सकता है। अच्छा, यही लेवल 2 होता, यही लेवल 2 होता, समझा? तो मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया है और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, उसका डिफरेंस किधर आ गया होगा? सस्पेंस में। तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा मालूम है? परचेज अकाउंट को क्या करना है? पर तुमको कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा भाई। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना? 100। झकास है। ये कौन सा रेक्टिफिकेशन हुआ? लेवल 2 रेक्टिफिकेशन हुआ। अगर सर यही क्वेश्चन लेवल 3 रेक्टिफिकेशन होता तो? लेवल 3 रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? फाइनल अकाउंट्स भी बन गया। अब अगर फाइनल अकाउंट्स बन गया है ना, तो ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड, और सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करके तुमने कहां ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल में। तो लेवल 2 में अगर कहीं पे भी कोई नॉमिनल अकाउंट आए ना, तो उसको हटा देना है, क्योंकि वो अकाउंट तो बंद, मतलब वो अकाउंट ही नहीं अभी हमारे पास। तो सर अब उसका अमाउंट कहाँ डालोगे? तो उसका अमाउंट डालना पड़ेगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में, बिकॉज पीएनएल अकाउंट में उसका इफेक्ट जा चुका है, तो उधर से ही निकालना पड़ेगा। तो अब लेवल 3 रेक्टिफिकेशन में लेवल 2 एंट्री बोलो पहले क्या है? इसके अंदर कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या? कौन सा अकाउंट नॉमिनल है? तो परचेज आ ही नहीं सकता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो इन शॉर्ट, अगर लेवल 1 रेक्टिफिकेशन है तो डायरेक्ट हो सकता है, लेवल 2 थ्रू सस्पेंस, लेवल 3 सस्पेंस एंड पीएनएल एडजस्टमेंट। और पीएनएल एडजस्टमेंट सिर्फ कहां यूज करने का? सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स के वक्त। चकास, कैन आई गो अहेड? नेक्स्ट, सेकेंड छोड़ रहा हूं, थर्ड पे जा रहा हूं। A sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to। पढ़ लो। और वही बोल रहा हूं कि अपने आप से पहले बोलो वी आर मास्टर्स। पहले बोलो आई एम द बेस्ट। 5-6 बार बोलो, बोलो फटाफट, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के राइट क्या है वो ढूंढना है, रॉन्ग क्या हुआ है वो भी ढूंढना है। थर्ड, a sum of 250 written off as has not been debited to। पहले राइट ढूंढो। राइट क्या है भाई? डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन का जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? डेप्रीशिएशन टू मशीनरी। ये राइट है, ये। अब मिस्टेक क्या हुआ? हैज नॉट बीन, नहीं, डेबिटेड वर्ड हटा देता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं हैज नॉट बीन क्रेडिटेड। हैज नॉट बीन टू विच अकाउंट? तो मिस्टेक क्या हो गया? मशीनरी को क्रेडिट करना भूल गए। किसको क्रेडिट करना भूल गए? पर डेप्री अकाउंट को तो डेबिट किया। अब लोग सोचते सर ऐसी मिस्टेक कैसी हो सकती है? भाई मिस्टेक है, हो सकती है। और समझा कैसे ढूंढना है?
सर क्या था, डेप्रीशिएशन चार्ज करना था, डेप्री का जर्नल एंट्री क्या था, डेप्री टू मशीनरी। अब पढ़ो रॉन्ग क्या हुआ था, हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए। तो डेबिट में मिस्टेक नहीं हुआ, कहां मिस्टेक हुआ, सिर्फ क्रेडिट में मिस्टेक हुआ, समझा। अब जो रॉन्ग एंट्री है उसका क्या करने का तुमको, तो रिवर्स करोगे तो डेप्री डेबिट हुआ है तो रिवर्स करेंगे तो डेप्रीशिएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट, और फिर क्या करोगे, राइट को रिवर्स से कंपेयर करोगे। अब राइट में डेप्री क्या हुआ था और रिवर्स में डेप्री क्या हुआ है, तो डेप्री डेप्री कट गया तो बचा क्या, तो लेवल 1 रेक्टिफिकेशन, क्रेडिट मशीनरी, कितने से क्रेडिट करने का है, 250 से। अगर लेवल 2 रेक्टिफिकेशन हुआ तो सस्पेंस टू मशीनरी, लेवल 3 रेक्टिफिकेशन हुआ तो सस्पेंस टू मशीनरी। सर यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा, बिकॉज मशीनरी तो रियल अकाउंट है, तो यहां पे भी आएगा सस्पेंस टू मशीनरी। चकास बोलो, बोल क्या नहीं समझा। मशीनरी को क्रेडिट इसलिए किया था कि क्वेश्चन में दिया था, नहीं, हम लोग ने राइट एंट्री और रिवर्स एंट्री को कंपेयर किया तो डेप्री डेप्री उड़ गया तो बचा क्या, और क्या करना था, बस। जगास, चल अब तू ही करेगा, ठीक है। चलिए सर फोर्थ वाला करते फोर्थ वाला, सब लोग को हेल्प करने का बेचारे को, हाँ ऐसा नहीं मतलब वही करेगा मतलब हम लोग सो जाए। चलो, द पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू, पहले पढ़ ले 2 बार। क्या खेल रहे हो तुम लोग कभी से यार, दो बार पढ़ा, अब वापस बोल आई एम द बेस्ट, वेरी गुड। अब कहाँ जा रही है तू, अच्छा बॉटल गिरी तो याद आया कि प्यास लगी है, ओके ठीक है। चलिए सर, अब 2 बार पढ़ लिया, आई एम द बेस्ट भी बोल दिया। अब इतने ही लाइन में से राइट क्या है ढूंढना है और मिस्टेक क्या हुआ है वो भी ढूंढना है। सो राइट क्या हुआ है, वेरी गुड, तो यहाँ पे लिखा सैलरी टू कैश। कितना सैलरी पे किया था, 75 जकास है। अब मिस्टेक क्या हुआ, 2 बार हमने सैलरी डेबिट और क्रेडिट दोनों सैलरी नहीं, तो 2 बार डेबिट किया है, हाँ इन्होंने बोला 2 बार सैलरी में लिख दिया, डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक नहीं हुआ। मतलब सैलरी को पोस्ट करने गया तो सैलरी में लिखना चाहिए था टू कैश, तो सैलरी में लिख दिया टू कैश, बट सैलरी में 2 बार लिख दिया। मतलब रॉन्ग क्या हुआ पता है, सैलरी अकाउंट डेबिट किया पर वो 150 के लिए डेबिट हो गया, और कैश में कोई मिस्टेक नहीं किया तूने, समझा। अभी ये जो रॉन्ग है उसका क्या करने का, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सैलरी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, फिर कंपेयर किसको करेंगे, तो राइट और रिवर्स को जब कंपेयर करेंगे ना, तो देख ये कैश क्रेडिट हुआ और ये कैश डेबिट हुआ, तो ये उड़ गया। अच्छा सैलरी डेबिट हुआ और सैलरी पर 150 का क्रेडिट हुआ था, तो ये सैलरी पूरा नहीं उड़ेगा, 150 उड़ेगा पर 75 रह जाएगा, समझ गया। अभी नेट तो क्या करने का है, क्रेडिट सैलरी बाय 75, डन, सिंपल।
ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। और लेवल 2 कैसा करेगा तुम लोग? सस्पेंस टू सैलरी। और लेवल 3 कैसे करोगे? सस्पेंस टू P&L adjustment. Easy, that's easy, not at all tough, not at all tough. ठीक है, एक और ट्राई हो जाए। सर जाग रहे हो? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। 6th वन ट्राई करेंगे। कौन सा ट्राई करेंगे? An amount of 151 for credit sale to Hari, although correctly entered in sales book, has been posted as। इसके लिए अपने को सब्सिडरी बुक भी बरोबर आना चाहिए, इसके पहले वाले सारे चैप्टर भी बरोबर आने चाहिए। सर पढ़ लो एक बार ट्रांजैक्शन। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए बोला बेटा। पढ़ लिया? बोल अपने, आई एम द बेस्ट। चलो अब आराम से इस ट्रांजैक्शन के अंदर बोलो राइट क्या हुआ है, मतलब हुआ क्या, एक्चुअली क्या हुआ है। राइट एंट्री नहीं बोल रहा हूँ, ट्रांजैक्शन राइट क्या है, मतलब व्हाट इज ट्रांजैक्शन, क्या हुआ है। देखा कितना गलत बोल रहा है। मैं ट्रांजैक्शन पूछ रहा हूँ, तू जर्नल एंट्री पे कूदा पड़ रहा है। इसके अंदर राइट क्या हुआ है सर? क्रेडिट सेल टू हरी। पता नहीं ये भाई कैश कहाँ से ढूंढ के लेके आया, बिकॉज ट्रांजैक्शन में क्लियरली बोला है क्रेडिट सेल टू हरी। व्हाट्स अ जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल टू हरी? कैश कहीं पे था ही नहीं, ये राइट है। और कितने का सेल किया है हम लोग ने? 151 ना, 151 का रियल सेल है। झकास है एकदम, कोई डाउट? ये राइट है। अभी अपने को क्या ढूंढने का है, क्या मिस्टेक हो गया। अब आराम से पढ़ो। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक में कोई मिस्टेक, तो टू सेल्स बरोबर गया है, बट वॉज रॉन्गली पोस्टेड। सेल्स बुक से पोस्टिंग किधर होगी? हरी के अकाउंट में। तो हरी के अकाउंट में पोस्ट करते करते कितना लिख दिया? तो भाई यहाँ पे मिस्टेक है ना, एंट्री की नहीं थी, खाली हरी को 151 की जगह पे 11, और इसका रिवर्स मारेंगे तो सेल्स विल बी 151 एंड हरी विल बी 115। अब किसको कंपेयर करोगे? कौन कट जाएगा? सेल्स कट जाएगा, और हरी डेबिट 151, हरी क्रेडिट 115। कौन सा कट जाएगा? क्रेडिट वाला कट जाएगा ना, क्रेडिट वाला छोटा अमाउंट है, कट जाएगा ना 115। 11 जो बड़ा है छोटा अमाउंट है वो कटेगा ना बेटा। देख ये सेल्स और ये सेल कट जाएगा, समझा? सेल कट गया। अब हरी डेबिट हुआ और हरी सो ऑपोजिट है, कटना है। अगर दोनों सेम होता तो ऐड हो जाता, पर अभी कटेगा। कौन कटेगा? 115 कटेगा, मतलब ऑलवेज स्मॉलर अमाउंट गोज ऑफ, तो ये पूरा कट जाएगा। और ये 151 से 115 कट जाएगा, तो 151 माइनस 115 कट जाएगा, तो 36 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 36 बच जाएगा। डू यू अग्री विद दैट? और वो कहाँ बचा? डेबिट में। तो लेवल 1 रेक्टिफिकेशन होगा तो क्या करना है? हरी को डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है? लेवल 2 होगा तो क्यों दूसरी टाइम कर रहा है अभी तू ये चैप्टर? सस्पेंस डेबिट कैसे होएगा?
नहीं तो पूरा एंट्री बोलने का ना, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई, प्यार से बोलो। लेवल 2 होगा तो एंट्री क्या होगा, ऐसा नहीं सस्पेंस को क्रेडिट कर लो भाई, पूरा करना पड़ेगा, हर ही अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। चकास बोलो। और गाइस लेवल 3 एंट्री रेक्टिफिकेशन बोलो, सेम आएगा बिकॉज यहां पे कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं था। डन दैट, क्लियर। चलो एक और प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 ले लेते हैं। Rupees 500 paid for furniture purchase have been charged to ordinary purchase account, ठीक है ना। डे 1 से क्लियर हूं, गुड्स और असेट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करो। मिल्कमैन, मिल्क क्या होता है, गुड्स, और असेट्स क्या होते हैं, साइकिल, कैन। अच्छा गुड्स के लिए 4 वर्ड, और ये सिर्फ वर्ड गुड्स के लिए यूज होगा, असेट्स के लिए यूज। क्या खरीदा, एंड इट इज रॉन्गली चार्ज टू विच अकाउंट, ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, ट्रांजैक्शन से राइट मिला, ट्रांजैक्शन से मिस्टेक मिला। व्हाट इज राइट, फर्नीचर टू कैश। व्हाट इज रॉन्ग, परचेज टू कैश। व्हाट इज रिवर्स, कैश टू परचेज। कंपेयर, क्या उड़ गया, रेक्टिफिकेशन, फर्नीचर टू परचेज। ये लेवल 1 है। लेवल 2 भी यही रहेगा बिकॉज यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों है तो सस्पेंस आने का जगह है ही नहीं। बट लेवल 3 परचेज हट जाएगा तो एंट्री बनेगा फर्नीचर टू P&L एडजस्टमेंट, नॉमिनल अकाउंट उड़ जाएंगे और वहां पे P&L एडजस्टमेंट लिखना है। अब थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछूं, ये जो मिस्टेक हुआ ना, ये कौन सा एरर है, ये प्रिंसिपल एरर है। ये कौन सा एरर है, इसको है ना गुड्स और एसेट के बीच में डिफरेंशिएट करने को आता ही नहीं है। ये बंदा सब कुछ गुड्स ही समझ रहा है, उसको परचेज वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए था, उसको वर्ड कौन सा यूज करना चाहिए था, फर्नीचर। समझा। एक और हो जाए, लास्ट 5th वन। मेरे को रिवीजन नंबर 1 या रिवीजन नंबर 2 याद आ रहा है। हाँ, रिवीजन नंबर 1 या रिवीजन नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ। हाँ तुझे, सैलरी पेड टू सुरेश 500। वेरी गुड। उस दिन मालूम है सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश चल रहा था, तुझे नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो पढ़ो। दो बार ट्रांजैक्शन पढ़ने का, 3 टाइम आई एम द बेस्ट बोलने का। 2 टाइम ट्रांजैक्शन पढ़ा, 3 टाइम आई एम द बेस्ट बोला, बोलने का। हाँ, तेरे को कोई तेरी तारीफ करता है कोई दिन में, पूरे दिन? तो अपने को बोलने का ना आई एम द बेस्ट, पागल। ठीक है, अपनी तारीफ कोई करेगा नहीं, अपने खुद को अपनी तारीफ करने की। डू यू अग्री विद दिस? पढ़ लिया तुम लोगों ने? टेल मी, राइट क्या हुआ इसके अंदर? सैलरी पे किया। व्हाट्स द जर्नल एंट्री ऑफ सैलरी पे? सैलरी टू कैश लिखना चाहिए था। मिस्टेक क्या हुआ? अरे भाई क्या लिख दिया मालूम है तुम लोग ने लिख दिया क्लर्क टू कैश। 10 बार बोला है कि रिक्शा में घूमने का, रिक्शा वाले का नाम नहीं पूछने का। ठीक है, अभी इसका रिवर्स मारेंगे तो क्या हो जाएगा? कैश टू क्लर्क। क्या कैंसिल हो जाएगा? कैश कैश कैंसिल हो गया। रेक्टिफिकेशन बोलो, सैलरी टू क्लर्क। लेवल 1 2 3 है ये। लेवल 2 का एंट्री क्या होगा? सेम। लेवल 3 का एंट्री क्या होगा? ये पता है तुम लोग को? दिस इज इम्पैक्ट ऑफ आई एम द बेस्ट।
नथिंग ऑफ राहुल सर, दिस इज लाइक आई एम द बेस्ट. जिकास है, एक और हो जाए. अरे यार चलिए गाइस, लास्ट वन. हाँ लास्ट, पक्का लास्ट. नहीं नहीं, एक ही नहीं, फर्स्ट वाला बस. कैन आई स्टार्ट? सब लोग का ध्यान इधर. परचेज गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन. दो बार पढ़ना है. कर लिया? Now that's what I'm saying, a little bit of a knowledge is also very important. Word to remember is sales book. Sales book is journal, ledger? Journal, huh? Now what is right? Purchase. So right entry क्या आएगा? नहीं मैडम, गलत कर दिया. परचेज टू राम. यहाँ पे कैश की कोई बात ही नहीं थी. भूल से कहाँ लिख दिया? सेल्स अकाउंट में नहीं बोला है, सेल्स बुक में लिख दिया. मतलब पूरे का पूरा जर्नल एंट्री उल्टा हो गया, बिकॉज सेल्स बुक जर्नल है. तो एक्चुअली तुम लोग ने यहाँ पे एंट्री लिख दिया राम टू सेल्स, और इसका रिवर्स आएगा सेल्स टू राम. अभी कंपेयर करो, कोई कैंसिल नहीं होगा. इनफैक्ट राम एंड राम क्रेडिट हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या आएगा मालूम है? परचेज सेल्स टू राम. ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है. लेवल 2 भी सेम, और लेवल 3 में परचेज भी उड़ जाएगा, सेल्स भी उड़ जाएगा. वहां पे आएगा P&L एडजस्टमेंट. चकास है पक्का? सेल्स बुक बोला इसीलिए सेल्स का एंट्री किया पूरा. अगर वहां पे कभी सेल्स अकाउंट लिखा हो ना, तो खाली सेल्स अकाउंट में गया, सेल्स बुक में नहीं गया. सेल्स बुक इज जर्नल एंड सेल्स अकाउंट इज लेजर. तो वर्ड अकाउंट एंड बुक भी बरोबर से पढ़ना है कि ये अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब खाली वो अकाउंट में मिस्टेक हुआ. नहीं, फिर एंट्री सेम नहीं आता. वो लोग ने बोला था सेल्स अकाउंट में लिख दिया हम लोग ने, तो परचेज की जगह पे कहाँ लिख दिया तुमने? सेल्स. बट राम में प्रॉब्लम नहीं हुआ उसका मतलब. तो फिर यहां का एंट्री क्या था मालूम है? राम भी क्रेडिट, सेल्स भी क्रेडिट. पर राम का मिस्टेक नहीं था, सेल्स अकाउंट में चला गया. परचेज अकाउंट की जगह पे सेल्स अकाउंट में चला गया. तो रॉन्ग एंट्री क्या था मालूम है? टू राम टू सेल्स. समझा? ये पूरा बुक तुम लोग के पास है, प्लीज इसे थोड़ा प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. आर वी क्लियर विद दैट वन? आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ट्रू और फॉल्स फास्ट नाउ. कैन वी डू दैट? First one, everyone can answer. The method of rectification of error depends upon the stage at which errors are detected. True. In case of error of complete omission, the trial balance does not tally. False. When errors are detected after preparation of trial balance, suspense account is opened. True. When purchase of an asset is treated as an expense, it is an error of principle. True. Trial balance agrees in case of compensating errors. True. When the amount is written on the wrong side, it is known as error of principle. False. Wrong side कौन सा error है? Commission. On purchase of furniture, the amount spent on the repair should be debited to repair account. False. कहाँ पे जाना चाहिए? Furniture में जाना चाहिए. Profit and loss adjustment account is open to rectify the errors detected in current accounting period. False. After the current account, because final accounts बनने के बाद ही हो सकता है वो. Next. Rent paid to landlord on the proprietor's house must be debited to rent account. कौन से अकाउंट में डेबिट होना चाहिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट में होना चाहिए, बिकॉज पर्सनल एक्सपेंस है. इफ एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, देन ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो. इज इट रिक्वायर कि हर एक एंट्री के अंदर सस्पेंस आए? फॉल्स. हर एक एंट्री के अंदर सस्पेंस आना जरूरी नहीं है.
गुड्स परचेज फ्रॉम ए 10,000 पेड थ्रू सेल्स बुक. चलो अभी ये सब पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है. आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम. फोर्थ वन, ₹200 पेड wages for erection of machinery should be debited to which account? Machine account. On purchase of old furniture, ₹1,000 is spent on repair should be debited to which account? Furniture account. Sale of office furniture should be credited to which account? Furniture account. Sales account में नहीं आएगा. अभी एग्जैक्टली क्लियर? चलो क्लियर है? कोई डाउट? कितने चैप्टर रिवाइज कर लिए आज हम लोग ने? 3. प्रैक्टिस करो इसके बाद फटाफट जाके तो कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट 3 चैप्टर्स आर डन? कैश बुक. सो नेक्स्ट रिवीजन सेशन जो होगा वो रिवीजन होगा अपना पूरा फाइनल अकाउंट्स पे. एंड फाइनल अकाउंट्स 2. कौन सा 2 फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडर एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर. अभी क्लियर? और अगर हमें टाइम मिलेगा तो उस दिन हम लोग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स भी कर लेंगे. क्लियर? थैंक यू. प्रकाश, बाय बाय, टेक केयर.